morning, all of you. This is Dr. Sanjay Roka, and in today's session, I am going to demonstrate how to use the convolution neural network for the simple image classification task. And in today's session, I'm going to use CNN for the detection of the brain tumor. And this is my datasets, and this is the brain tumor MRI datasets, and it contains the two folder, training set and test set. And within the training set there are four folders are there. It means there are four different categories of the tumor are there. This is the glioma cancer, this is the melanoma cancer, and this folder contains the no tumor images, and this contains the pituitary category of images, pituitary cancer types of the images. You can see here these are the some of the images in the respective folder. So before starting the session, we have to copy this dataset into our Google Drive, because we are going to start code in a Google Colab. And in Google Colab, first of all, sign into your Google Drive. Then after that, directly drag your dataset folder to your Google Drive, to copy these data sets in your Google Drive. Okay, now if I drag it here, and if I wanted to paste this inside the data sets, I will just drag it here and leave it, and it will say that this brain tumor data set is being uploaded in my Google Drive within this data sets. But since I have already copied my dataset to this Google Drive, therefore this option is saying that replace the existing folder. So I will just cancel it, but you guys have to just copy the dataset folder into your Google Drive before proceeding. Okay, next, once this dataset has been uploaded in your Google Drive, just start a Google Colab. And to start a Google Colab, first of all you have to click on this plus new icon. This plus new icon is here, and then you have to choose more, then click on more, then after that click on Google Collaboratory. If you have not installed the Google Collaboratory in your Google Drive, then click on connect more apps. Then after that, search the Google Collaboratory. Connect more apps. Now here in search app, type the Collaboratory. Yeah, this one is the Collaboratory. If you haven't installed your Google Colab in your Google Drive, now after that click on this Collaboratory option. Now since I have already installed the Google Colab, so therefore it is showing the uninstall option. But if you guys have not installed the Colab in your Google Drive, then there will be some install button will be there. Just hit this install button, then the Colab will be installed in your Google Drive. Now next, to create a new file, click on this plus new option, then more, then Colab, Google Collaboratory, and new file will be created. Now since I have already created this file, make this video short and simple, I will just I have already pasted the code here. Now here the first line of the code is used to mount your Google Drive and the Google Colab, and this line of the code will connect your Google Colab with your Google Drive. Now just run this code. It is saying connect to Google Drive, and click on this button. Now you can choose your account just to verify it. Select continue option. Then choose continue. Now this is the folder icon. You can see here this one. When the Google Drive will be mounted, then this Google Drive will be displayed here. You can also mount your Google Drive from this option. This option is also used to mount the Google Drive. If you click on this button,
then your Google Drive will also be mounted. Either you can run this code or you can click here. Okay, now this is my Google Drive where my dataset is there. You can see here I have saved my within the dataset folder. I have copied my brain tumor dataset here. Brain tumor MRI dataset is here. Okay. Now next, this line of the code is used to check whether you are running the GPU or not. Since we are handling the image, therefore for the faster processing, we use the graphical processing unit GPU. But if we try to run this code, if we try to build the CNN model in CPU, it will take a bit longer time. So in order to reduce the training of our models and for the smooth execution, we select the GPU, the graphical processing unit. Click here runtime, then change runtime type, then choose here T4 GPU, and using this GPU we will be executing our this program, this code. I just click on this save button. Now next, this line of the code is used to check whether I am using the GPU or not. It is saying that I am using the Tesla T4 GPU. आप लोग जब भी क्लासिफिकेशन का कोई भी कोड बनाते हैं तो उस टाइम में आप लोग को हमेशा GPU ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि CPU काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो इसलिए हमारा जो CNN का जो मॉडल होता है वो CPU में एग्जीक्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, GPU यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी GPU यूज़ करना पड़ेगा। तो GPU यूज़ करने के लिए आप लोग को रन टाइम में जाना है और उसके बाद you have to choose change run time type, then you have to select GPU option. Okay, next step is data pre-processing. अब इमेज को रीड करने के लिए, to read the images from my data sets, I have written this code and I am using the image data generator to read my images. Here these are some of the libraries that are going to be used while reading the images and making your CNN model. और ये वाली इस लाइन ऑफ कोड से क्या हो रहा है कि आई एम ट्राइंग टू कॉपी माई इमेज डेटा सेट्स टू द लोकल कोलैब ड्राइव। हमारा जो गूगल कोलैब का जो लोकल ड्राइव है उसमें मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक यूनिक्स कमांड है, इससे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब ये वाली पाथ कहाँ से मिलेगी? अब यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे है माई ड्राइव का ऑप्शन। माई ड्राइव में आप लोगों ने डेटा सेट कहाँ पे रखा था? ये आप लोगों ने रखा था कुछ रिसर्च के अंदर, ये डेटा सेट का फोल्डर था। ठीक है, और ये डेटा सेट के अंदर का जो फोल्डर है इसमें है आपका ये ब्रेन ट्यूमर MRI डेटा सेट्स। अब ये 3 डॉट जो है इसमें क्लिक करना है पाथ को कॉपी करने के लिए और चूज करना है कॉपी पाथ। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस पाथ को कॉपी करता हूँ, ये वाला पाथ आता है। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि इतने वाले जो मेरे कंटेंट है ब्रेन ट्यूमर MRI डेटा सेट्स है, इस सारे फोल्डर को कॉपी करना है। कहाँ पे करना है? कंटेंट के अंदर, यानी कि एक जो हमारा जो कोलैब जो लोकल ड्राइव है उसमें जाके कॉपी करना है, सो दैट मेरा जो इमेज का जो एक्सेसिंग होगा, जो मॉडल जब रन करेगा, इमेज को जब रीड करेगा, उस टाइम में प्रोसेसिंग वगैरह क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि वो गूगल ड्राइव से कॉपी करेगा। वो इमेज को रीड करेगा कहाँ से? गूगल कोलैब की जो भी लोकल ड्राइव है वहाँ से इमेज को रीड करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये वाली पार्ट कुछ नहीं है। ठीक है, इस वाले कोड को मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये रन हो गया। ठीक है, अब ये वाला कोड भी मैं रन करा के दिखाता हूँ और मेरे जितने भी इमेजेस हैं मेरे इस ब्रेन ट्यूमर MRI डेटा सेट में, ये सारे कॉपी हो जाएंगे कॉन्टेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये कॉपी हुआ है गूगल ड्राइव से। कहाँ पे जा रहा है? हमारी गूगल कोलैब के लोकल ड्राइव में कॉपी हो रहा है। ठीक है,
ये कॉपी होने में काफ़ी टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द इमेजेस दैट यू हैव इन योर डेटा सेट फोल्डर। अब मैं इस लाइन ऑफ कोड में आ रहा है, मैंने बता दिया कि ट्रेनिंग डायरेक्टरी क्या है, कहाँ पे है, कि जो भी कंटेंट के अंदर है, जो ब्रेन ट्यूमर हमारे डेटा सेट जो मैंने कॉपी किए थे उसके अंदर का जो ट्रेनिंग वाला फोल्डर है ये यूज़ होना चाहिए ट्रेनिंग डायरेक्टरी। और टेस्टिंग डायरेक्टरी क्या यूज़ होना चाहिए, जो भी इस कंटेंट के अंदर ये वाला जो फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर जो भी ये टेस्टिंग नाम का फोल्डर है, दैट टेस्टिंग फोल्डर शुड बी यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज। आई नेम शुड बी टेस्ट अंडरस्कोर dir। ठीक है, तो इस कोड को भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। नेक्स्ट कोड है डेटा आर्गुमेंटेशन। जनरली डेटा आर्गुमेंटेशन हम लोग को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हमारा जो मॉडल है ट्रेनिंग इमेजेस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर जब जो अनसीन डेटा सैंपल होते हैं जैसे कि टेस्टिंग सैंपल होते हैं उसमें हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है। तो इस ओवरफिटिंग को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं डेटा आर्गुमेंटेशन टेक्निक। ठीक है, अब ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि इमेज के जो साइज है, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग सैंपल्स दे आर लो एंड द साइज ऑफ द मॉडल इज लार्ज, यानी कि डेटा सेट का साइज कम होना और मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि बहुत ही मॉडल हैवी होना, हैवी मॉडल एंड लो इमेज साइज परफॉर्म्स मेक्स योर मॉडल ओवर फिटिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा आर्गुमेंटेशन वगैरह यूज करते हैं, जिससे हमारा ट्रेनिंग इमेजेस का साइज वगैरह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि 500 इमेज है तो 5000 इमेज होना, 10,000 इमेज है तो 5000 इमेज होना। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डेटा आर्गुमेंटेशन टेक्निक। ठीक है, पर इस लाइन ऑफ द कोड में मैं डेटा आर्गुमेंटेशन कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल को इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जो भी मेरा इमेज है उसी इमेज में मैं डिफरेंट टेक्निक यूज करके उसको क्या कर रहा हूँ, इमेज को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। जिसकी रीस्केल 1/255 का मतलब है मेरा अभी इमेज में जितने पिक्सल्स है सबके वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। तो मैं इन पिक्सल की वैल्यू को नॉर्मलाइज कर रहा हूँ इन द रेंज 0 to 1 by dividing it with 255 because the maximum possible intensity of pixel in an image is 255। जब मैं 255 से डिवाइड करूँगा तो प्रत्येक एवरी पिक्सल की जो इंटेंसिटी जो वैल्यू होती है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, इन द वैल्यू 0 और 1 के बीच में। यानी कि जैसे कि पिक्सल की वैल्यू हो सकती है 0.23, 0.17, 0.18, 0.25, 0.75, यानी कि 1 से बहुत ही छोटा वैल्यू मिल गया। तो ये प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, फॉर स्मूथ प्रोसेसिंग, ठीक है, आई एम जस्ट नॉर्मलाइजिंग द ईच पिक्सल इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इन द रेंज 0 to 1 बाई डिवाइडिंग इट विथ 255। उसके बाद जब इमेज मेरा रीस्केल हो गया, उसके बाद उस इमेज को क्या करना है, रोटेट करना है +5 से लेके -5 डिग्री में, यानी कि रैंडमली उसको क्या करना है, रोटेट करना है कुछ भी डिग्री में, चाहे वो +3 हो चाहे वो -3 हो। उसके बाद उसे हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है फ्रॉम 0.02 या फिर -0.02 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू से उसको क्या करना है, उसकी हाइट को चेंज करना है और हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है। ठीक है, और उसके बाद चेंज मैं अभी यहाँ पे फोल्डर में दिखाया था, मेरे पास सिर्फ 2 ही फोल्डर है, ट्रेनिंग सेट्स और टेस्टिंग सेट्स। मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करूँगा और ट्रेनिंग वाला ट्रेनिंग के लिए यूज़ करूँगा, पर मेरे पास वैलिडेशन वाला फोल्डर नहीं है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, वैलिडेशन वाला फोल्डर अपने आप से जनरेट करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वैलिडेशन के लिए होना चाहिए 0.2, यानी कि 20% ऑफ द ट्रेनिंग डेटा सेट्स, यानी कि ट्रेनिंग सैंपल जितने भी है, अगर मेरे पास 1000 सैंपल है तो 1000 में से 800 सैंपल यूज होंगे ट्रेनिंग के लिए और 20% यानी कि 200 इमेज यूज होंगे वैलिडेशन के लिए। ठीक है, ताकि मेरा मॉडल का जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन कैपेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर इमेजेस का हो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। मैंने अभी ये बना दिया कि ये चीज़ होने चाहिए डेटा आर्गुमेंटेशन के लिए,
और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो मेरा जो ट्रेन जनरेटर होगा जिससे मैं इमेज को लोड करूँगा, ये कहाँ से लोड करना है, ट्रेन DIR से। ठीक है, ट्रेन DIR ये वाला हो गया, यहाँ से इमेज को रीड करना है। और जब भी मेरा इमेज रीड होगा तो क्या होगा, कितने साइज रीच करना है, 128 क्रॉस 128। इट मीन्स दिस इज द डिमेंशन ऑफ माई इमेज। हाइट शुड बी 128 एंड द विड्थ शुड बी 128। और इमेज कैसे पास होनी चाहिए, 64 के बैच में, यानी कि एक बार 64 इमेज और एक बार 64 इमेज, ऐसे कि एक लूप में जब मैं इपोक चलाऊंगा, फर्स्ट इपोक्स में क्या होगा, 64 इमेज 64 इमेज 64 इमेज 64 इमेज करके मेरे मॉडल में पास होंगे। ठीक है, तो ये है मेरा क्लास मोड कैटेगोरिकल। सिंस इसमें मेरे डेटा सेट में डिफरेंट क्लासेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टी क्लासेस है। एक क्लास है मुझे ग्लायोमा है कि नहीं ये चेक करना है, दूसरा मेनिग्योमा, तीसरा नॉन ट्यूमर, एक चौथा पिट्यूटरी, मल्टी क्लास है ये। ठीक है, तो मल्टी कैटेगरी डिटेक्शन भी करना है कि मेरा इमेज ग्लायोमा है या फिर ये है या फिर नॉन ट्यूमर है या फिर पिट्यूटरी है। तो ये मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग लेते हैं कैटेगोरिकल। ठीक है, मैंने ये कैटेगोरिकल ले लिया। और ये वाला जो सबसेट है 80%, ठीक है, ये वाला करना है ट्रेनिंग के लिए, मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसे बता दिया कि मेरे पास टोटल अभी इतने 4571 इमेजेस है बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट कैटेगरी क्लासेस। ये तो होगा मेरा ट्रेनिंग जनरेटर। दिस इमेज विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग माय मॉडल्स। नेक्स्ट वैलिडेशन के लिए मैंने 20% सेट किया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वैलिड डेटा जनरेटर, इसमें ये प्रॉपर्टी सेट कर दी। और वैलिड डेटा जनरेशन में जो भी इमेज पास होंगे सबको अगेन नॉर्मलाइज करो इन द रेंज 0 to 1। ठीक है, और स्प्लिट करो 0.2, यानी कि 20% सैंपल आउट ऑफ द टोटल ट्रेनिंग सैंपल विल बी यूज्ड फॉर द वैलिडेशन। क्योंकि जब हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा होता है उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अनसीन डेटा सेट के ऊपर भी टेस्ट करना पड़ता है कि हमारा जो मॉडल ट्रेन हुआ है ये अनसीन डेटा सेट में कैसा परफॉर्म कर रहा है आफ्टर एवरी इपोक्स, यानी कि आफ्टर एवरी इपोक्स 20% ऑफ द इमेज, यानी कि अनसीन इमेज विल बी यूज टू वैलिडेट, यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल, कि मॉडल का परफॉर्मेंस अभी कितना आया है दिस इपोक्स में। एक इपोक्स के बाद सेकंड इपोक्स में अगेन 20% ऑफ द सैंपल विल बी यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल। इसमें वही चीज़ है, ट्रेन DIR को यूज़ करो और इसका जो रिमेनिंग 20% है वो वाला सैंपल यूज़ करो। और इसमें भी जैसे यहाँ पे 128 था डिमेंशन, तो यहाँ पे भी मेरे इमेज के डिमेंशन 128 क्रॉस 128 होने चाहिए। इमेज कैसे पास होने चाहिए, 64 के बैच में, यानी कि एक बार में 64 इमेज, फिर अगेन 64 इमेज, अगेन 64 इमेज, अगेन 64 इमेज, तब तक पास होने चाहिए जब तक पूरे सैंपल ख़त्म नहीं हो जाते। जब पूरे सैंपल ख़त्म हो जाएंगे तो एक इपोक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन ये वाले कौन सा सबसेट था, ये वाला है वैलिडेशन के लिए। और वैलिडेशन के लिए मेरे पास एक इमेजेस है, ये अनसीन इमेजेस है। ठीक है, इससे मैं वैलिडेट करूँगा अपना मॉडल का परफॉर्मेंस। ठीक है, ये तो गया मॉडल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब जब मॉडल मेरा ट्रेन हो जाएगा, बन जाएगा, CNN का मॉडल बन जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए, कुछ टेस्ट सैंपल भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाले मेरे जो टेस्टिंग सैंपल फोल्डर है उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये भी अनसीन सैंपल है, अभी मॉडल अभी तक इसको देखे ही नहीं है। ठीक है, तो ये अनदेखे हुए सैंपल के ऊपर भी मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल परफॉर्मेंस को चेक करूँगा ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कोई डेटा डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज नहीं की है, बस यहाँ पे रीस्केलिंग ही की है, नॉर्मलाइज की है और फास्टर प्रोसेसिंग। और मैंने बता दिया कि टेस्ट जनरेटर की प्रॉपर्टी शुड बी दिस वन, it should read the image from this directory and the size of the image should be this one, dimension, height and width. This is the batch size. Again this is shuffle equal to false means कोई भी इमेज को इधर से उधर मतलब गड़बड़ नहीं करना है, जिस ऑर्डर में इमेज है उसी इमेज में ही इमेज पास होनी चाहिए। अगर मैं shuffle equal to ट्रू करूँगा तो मेरी इमेज क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये वाले लाइन ऑफ द कोड। यहाँ तक मेरा टेस्ट सैंपल भी तैयार हो गए, ट्रेनिंग सैंपल भी तैयार हो गए, और उसके बाद क्या बोलते हैं ये वैलिडेशन के लिए सैंपल भी रेडी हो गए। ठीक है, तो मैं चला देता हूँ इसको को।
and this line of the code is generally used to display your images. ठीक है, यानी कि आपके जो भी इमेजेस है इस फोल्डर में, तो एवरी क्लास की इमेज को डिस्प्ले करने के लिए ये वाले कोड है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये वाली इमेजेस जैसे कि मेरे पास अभी 4 क्लास है, ग्लाइमा, मैनिगोमा, नोडूमर और पिट्यूटरी। ठीक है, और एवरी क्लासेस के रेस्पेक्टिव इमेजेस मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा के दिखा दिया कि पिट्यूटरी ए वाले कैंसर वाले इमेज ऐसे होते हैं, नो ट्यूमर वाले ऐसे होते हैं, ये वाले ऐसे होते हैं, ग्लाइमा वाले ऐसे होते हैं। रैंडमली कोई इमेज को डिस्प्ले करा दी। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड से मैंने पांडास फ्रेम मदद से, ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया कि ट्रेनिंग के लिए मेरे पास जो सैंपल है, ग्लाइमा के इतने सैंपल है, मैनिगोमा के इतने सैंपल है, नो ट्यूमर के इतने सैंपल है, ये डिस्प्ले करा दिया। ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ विजुलाइज वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, विजुलाइजेशन हो रहा है। अगर आपको विजुलाइजेशन नहीं करना है तो आप लोग डायरेक्टली टेस्ट जनरेटर से डायरेक्टली मूव कर सकते हो मॉडल बिल्डिंग फेज में। ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले कराने हैं कुछ अपने बिजनेस वगैरह तो आप ये वाले कोड देख सकते हो। तो इसी अगेन इसी इंफॉर्मेशन को मैंने प्रिंट किया है, डिस्प्ले कराया है इन फॉर्म ऑफ बार चार्ट, plt.bar वेयर, और plt इज आवर मैटप्लॉट लाइब्रेरी। कैसे इंपोर्ट करेंगे इसको? इंपोर्ट मैटप्लॉट lib.pyplot एज plt। ठीक है, और मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज जनरली यूज फॉर द विजुलाइजेशन ऑफ योर डेटा सेट्स। आपको अपने डेटा सेट को विजुलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, बार चार्ट, तो या फिर स्कैटर प्लॉट करना है, तो उस टाइम में हम लोग यूज करते हैं ये वाली plt लाइब्रेरी, दैट इज द मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको विजुलाइज कर दिया कि ये मेरी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द क्या है कि डिजीजेज है और उनके अंदर इतने सैम्पल है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन मैंने बार के फॉर्म में प्लॉट किया था, तो अभी मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है पाई चार्ट के फॉर्म में। तो अभी ये दिख गया है यहाँ पे कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है। अब इसमें देख सकते हैं पिट्यूटरी इमेज आर आउट 25% आउट ऑफ 100%, यानी कि लगभग वो सारे ये बैलेंस इमेज, हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ बैलेंस डेटा सेट बिकॉज द नंबर ऑफ द इमेजेस इन ईच फोल्डर इज नियरली इक्वल। ठीक है, जैसे कि अभी 25 है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ये 23 था तो ये 25 हो गया, थोड़ा सा 27 पर फिर भी थोड़ा बैलेंस ही है। ठीक है, पर उतना बैलेंस ही नहीं है। नेक्स्ट है मॉडल बिल्डिंग पेज। जैसे ही हम लोग इन्फॉर्मेशन अपने डेटा सेट को डिस्प्ले करा दिए, उसके बाद आता है मेन काम मॉडल बिल्डिंग। हमारे CNN के मॉडल को कैसे बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैरास लाइब्रेरी का यूज़ किया है। तो आई हैव इम्पोर्टेड दिस टेंसरफ्लो STF अगेन फ्रॉम दिस TensorFlow.keras। आई एम importing this input model conv2d, max pooling, flatten, dense layer वगैरह मैं इंपोर्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये वाला कोड चला है कि नहीं चला है, एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ। ये वाला कोड यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पाई चार्ट। ठीक है, अब मॉडल बिल्डिंग ये चला नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया मेरा मॉडल जो बनेगा CNN का मॉडल, इट शुड रिसीव द इनपुट साइज ऑफ 128x128x3। तो हियर 128 इज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेजेस, जो मेरे मॉडल में क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है, हियर T represent the color channel, it means if its value is 3 it means my model will accept the RGB image, and if its value is 1 then it means it will accept the grayscale image। ठीक है, पर मैं यहाँ पे अभी 3 लेके ही चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बेशक मेरी इमेजेस मेरे ग्रेस्केल में है, कोई बात नहीं, मैं फिर से 3 लेके ही चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आई हैव इम्पोर्टेड दिस कन्वोल्यूशन लेयर CNN लेयर फ्रॉम द keras.layers। ठीक है, मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये वाला कन्वोल्यूशन लेयर। और इस जनरली हम लोग कन्वोल्यूशन लेयर यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द विजिबल फीचर्स, टू एक्सट्रैक्ट द अपीयरेंस फीचर्स, टू एक्सट्रैक्ट स्पेटियल features from the images we use the convolution neural
नेटवर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मेरा जो फिल्टर साइज है वो होने चाहिए 3x3 मैट्रिक्स, और इसका जो फिल्टर साइज है वो होना चाहिए 32, यानी कि 32 फिल्टर्स हमारा, जैसे कि ए, ठीक है, और उसके बाद कुछ विजिबल फीचर्स वगैरह वो सारे वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ये टोटल 32 फीचर्स वगैरह क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है and these 30 filters will extract the different features like age, age it will extract the age, texture, shape and patterns from your image. Okay, next है activation function value, and generally it is used to ensure the non-linearity in your model. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है जो ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, दिस लेयर विल रिसीव द इनपुट दिस वन, यानी कि ये भी जो मेरा इनपुट है ये वाला क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनपुट होना चाहिए, और जो भी इमेज मेरा इस कन्वोल्यूशन नेटवर्क से पास होगा उसको मैं सेव करूँगा एक्स वाले वेरिएबल में, और फिर से मैं क्या करूँगा, इस एक्स वाले वेरिएबल को पास करूँगा मैक्स पूलिंग में। ठीक है, मैक्स पूलिंग जनरली क्या करता है, इट रिड्यूसेस द डिमेंशन ऑफ योर इमेज। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है स्ट्राइड वैल्यू 2, इट मीन्स द साइज ऑफ माई इमेज आउटपुट ऑफ दिस लेयर विल बी कितना होगा, डिवाइड बाई 2। मैंने जैसे यहाँ पे पास किया है 128x128 इमेज, तो जैसे ही ये इमेज मैक्स पूलिंग से पास होगा, मैक्स पूलिंग का काम बस इतना है कि इमेज की डिमेंशन को रिड्यूस करना है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द स्ट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइड की वैल्यू 2 सेट की है, तो जब ये 128x128 इमेज यहाँ पे पास होगा तो x का आउटपुट कितना आएगा, x का आउटपुट आएगा 64x64 क्रॉस नंबर ऑफ द फिल्टर, दैट इज द 32, दैट इज द डेप्थ ऑफ द इमेजेस। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया 64x64 क्रॉस 32। अगेन मैंने क्या किया, इस वाले लेयर से तो मैंने स्पेटियल फीचर्स वगैरह मैंने एक्सट्रैक्ट में कर दिए, तो मैंने एक और मैंने कन्वोल्यूशन लेयर मैंने इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल्टर साइज सेट कर दिया कि फिल्टर साइज शुड बी 64, और ये वाला भी लेयर भी मैं क्या करेगा, जो भी मेरे आउटपुट आए एक्स के, इस एक्स वाले फीचर मैप से ये क्या करेगा, फिर से कुछ स्पेटियल फीचर्स वगैरह और एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसकी फीचर की जो एक्सट्रैक्ट करेगा तो इसको सेव करेगा एक्स वाले वेरिएबल में। तो ऐसे करते करते मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और भी कन्वोल्यूशन लेयर वगैरह मैं ऐड करूँगा, ताकि मेरा लेयर थोड़ा, मेरा जो मॉडल है उसमें क्या है, क्या हो जाए कि कुछ थोड़ा सा डीप हो जाए। ठीक है, ज़्यादा कन्वोल्यूशन लेयर रखने से थोड़ा सा स्पेटियल फीचर वगैरह भी थोड़ा बेटर आ जाए, ताकि मेरा मॉडल का जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी क्या हो जाए, थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो 3 कन्वोल्यूशन लेयर रखने के बाद मैंने यहाँ पे सेट किया है फ्लैटर लेयर। और फ्लैटर से क्या हो जाएगा, इस फ्लैटर से जो भी मेरा एक्स का जो आउटपुट है, यहाँ पे जो मेरा एक्स फीचर मैप है, इसको रिड्यूस करेगा 1 डिमेंशन वेक्टर में, यानी कि सिंगल वैल्यू यहाँ पे मुझे देगा। जैसे इस कोड को मैं यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ, इसको model डॉट सॉरी, जैसे कि यहाँ पे इस लेयर में फाइनली जो थर्ड कन्वोल्यूशन में कन्वोल्यूशन लेयर इंसर्ट किया था, थर्ड मैक्स पूलिंग लेयर, तो मेरा आउटपुट आया 14x14x128। तो जैसे ही ये वाला फीचर मैप पास होगा फ्लैटर लेयर में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू एक सिंगल डिमेंशन वेक्टर में, यानी कि 40 को मल्टीप्लाई करूँगा 14 से और उस मल्टीप्लाई करूँगा 128 से, तो मुझे टोटल फीचर मिल गए 25,088। ये काम होता है फ्लैटन का, it is used to convert your image into the one dimension vector। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मेरा फुल्ली कनेक्टेड लेयर स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने डेंस लेयर की वैल्यू सेट किया 128 न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और डेंस लेयर मैंने सेट किया, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू 4 है बिकॉज मुझे, क्योंकि आई हैव परफॉर्म द 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द
क्लासिफिकेशन। मेरे ट्रेनिंग सैंपल में मेरे पास 4 डिफरेंट कैटेगरी के क्लासेस थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट किए इसके वैल्यू 4। अगर आप लोग के पास अगर 2 ही क्लास है या 5 है, जितने भी फोल्डर होंगे हमें उतने ही क्लासेस यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट द एक्टिवेशन फंक्शंस, सिंस दिस इज मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ज़्यादा क्लासेस की मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो आई विल बी यूज हियर सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। अगर ये मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है जैसे कि ट्यूमर नो ट्यूमर, यस और नो वाला आंसर, उस केस में मैं डेंस लेयर की वैल्यू सेट कर देता 1 और सॉफ्टमैक्स के बदला मैं देता सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने मॉडल को बिल्ड कर दिया, ठीक है। इनपुट पे ये वाले इनपुट्स आने चाहिए, स्टार्टिंग के इनपुट्स, ठीक है, ये वाले, और मॉडल के आउटपुट में क्या आने चाहिए, ये वाले आउटपुट आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। और मैंने अब मॉडल को कंपाइल कर दिया ऑप्टिमाइजर एडम से, ठीक है। एडम का ऑप्टिमाइजर जनरली इट परफॉर्म्स बेटर फॉर द जनरल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइजर सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई भी इसकी लर्निंग, एडम की डिफॉल्ट लर्निंग रेट होती है 0.001। अगर हम लर्निंग रेट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमारा मॉडल ट्रेन होता है इसी वाले डिफॉल्ट लर्निंग रेट से, डैट इज 0.001, ठीक है। और सिंस दिस इज द मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, देयरफॉर आई एम यूजिंग द लॉस फंक्शन एज अ कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। और मैंने बताया मैट्रिक्स होनी चाहिए एक्यूरेसी, यानी कि जब मेरा मॉडल ट्रेन होगा उस टाइम में ये वाली एक्यूरेसी वाली वैल्यू यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा मॉडल डॉट समरी। इससे क्या होगा कि मेरा मॉडल का जो साइज है, मेरा मॉडल जो बना है उसकी कुछ समरी वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे जब मैंने इस कोड को रन किया तो यहाँ पे दिखाई दिया मुझे कि मेरे मॉडल का जो साइज है वो है 33 लाख के आसपास में, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी नहीं है। हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ लाइट वेट मॉडल। और जनरली ये जो ओवरफिटिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसमें क्या होता है कि हमारा मॉडल का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अभी मेरे पैरामीटर्स है 33 लाख के आसपास में, पर जब ओवरफिटिंग होता है तो उस केस में हमारे मॉडल का जो साइज होता है, पैरामीटर का साइज, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 90 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़। और इमेज के साइज क्या होते हैं, इमेज के नंबर ऑफ द ट्रेनिंग सैंपल कितने होते हैं, थोड़े लो होते हैं, तो इसी वजह से हमारा क्या हो जाता है, ओवरफिटिंग हो जाता है। और अंडरफिटिंग के केस में क्या होता है, मॉडल की जो पैरामीटर होते हैं वो कम होते हैं और इमेज के हमारे साइज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ओवरफिटिंग को सॉल्व करने के लिए, ओवरफिट ऐसा सिनेरियो है जिसमें ट्रेनिंग सैंपल कम होते हैं और मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि नंबर ऑफ द पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग सैंपल्स को इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग द डेटा कम्पिटेशन टेक्निक, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं कुछ रेगुलराइजेशन फंक्शन डैट इज L1 L2, ठीक है, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं कुछ लॉस फंक्शन वगैरह जो हैंडल करता है इम्बैलेंस क्लास को, जैसे कि एक फोल्डर में ज़्यादा इमेज है दूसरे क्लास में कम है, तो ऐसे इम्बैलेंस डेटा सेट हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाले लॉस फंक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका ओवरफिटिंग का। तो ओवरफिट में जनरली हमारा मॉडल क्या करता है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग द पैटर्न्स फ्रॉम द इमेज इट विल ट्राई टू मेमोराइज द पैटर्न, यानी कि वो रट्टा मारना स्टार्ट कर देता है कि ब्रेन ट्यूमर के मेनिमा वाले की इमेज ऐसे होते हैं, नॉन ट्यूमर के ऐसे होते हैं, बेनिगन के ऐसे होते हैं। पर हमारे मॉडल को हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें करना है उसको लर्न कराना है। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द पैटर्न वी विल हेल्प आवर मॉडल ट्रेन द टू लर्न द विजिबल पैटर्न्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे क्या किया है, मॉडल डॉट फिट यूज़ किया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया जो भी ट्रेन जनरेटर में जो भी सैंपल है, तो इस सैंपल से मॉडल को ट्रेन कराओ और इसको ट्रेन कराओ 25 इपोक्स तक, यानी कि 25 लूप तक ये चलेंगे। एंड ईच लूप 64 इमेजेस विल बी पास, तब तक पास होते रहेंगे जब तक सारी इमेज कंप्लीट ना हो।
जब सारे इमेज कंप्लीट हो जाएंगे तो वन इपोक्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो वैलिडेशन सैंपल है, जो ऑनसीन सैंपल है, उस सैंपल से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पास किया वैलिडेशन डेटा। तो इस कोड को मैंने रन कर दिया। तो जब ये 25 इपोक्स तक कंप्लीट इपोक्स तक चला तो इस टाइम में इसकी एक्यूरेसी मिली मुझे 99% के आसपास में। ठीक है, तो अब ये वाला कोड यूज होता है हमारे मॉडल को सेव करने के लिए। आप चाहो तो अपने मॉडल को मॉडल डॉट सेव कर सकते हो। ठीक है, मेरा मॉडल का नाम क्या है, मैंने जहाँ पे भी मॉडल बनाया है तो मैंने बस ये लिखा है कि मॉडल, ये मेरा जो मॉडल है, ये तो मॉडल का नाम ही मेरा क्या है, मॉडल है। ठीक है, तो जब इसको ट्रेन करूँगा तो मॉडल डॉट फिट लिखूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉडल डॉट फिट लिखा है। और जब मेरा मॉडल ट्रेन होगा तो उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी आ रही है, टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो सारी वैल्यू मैं सेव करूँगा हिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, हिस्ट्री में सेव हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने मॉडल को सेव करूँगा उसी मॉडल के नाम से। ठीक है, मॉडल डॉट सेव या फिर मॉडल डॉट लोड। ठीक है, मॉडल को मैं लोड करूँगा इस वाले लोड मॉडल। ठीक है, ये मैंने कोड किया है कैरास से। ठीक है, अब जैसे ही मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा माई टेस्टिंग फेज विल बिगिन। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो भी हिस्ट्री के फॉर्म में सेव किए थे अपने जो भी ट्रेनिंग एक्यूरेसी वगैरह, वैलिडेशन एक्यूरेसी वगैरह, इसी हिस्ट्री को मैं यूज़ करके मैं अपने ग्राफ विजुलाइज करूँगा। ठीक है, इसी हिस्ट्री को। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री यहाँ पे यूज़ हो रही है और यहाँ से मैं विजुलाइज कर रहा हूँ जो भी मेरी एक्यूरेसी आ रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी या फिर वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो मैंने इसको प्लॉट कर दिया यूजिंग दिस कोड से। ये सिंपली विजुलाइजेशन हो रही है। यू कैन सी हियर दिस लाइन इज इंक्रीजिंग, मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ माई मॉडल इज इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ द इपोक्स इज इंक्रीज। 25 इपोक्स के आसपास में मिले हैं मुझे, कुछ 99 एक्यूरेसी की एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये वाले भी वैलिडेशन एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है। और ये वाली लाइन ऑफ कोड इज यूज टू प्लॉट द लॉस वैल्यू। ठीक है, यहाँ की ट्रेनिंग लॉस कितने आ रहे हैं, वैलिडेशन लॉस कितने आ रहे हैं, ये लॉस की वैल्यू वगैरह नीचे रिड्यूस हो रही है। दिस डिपिक्ट्स दैट माय मॉडल इज लर्निंग द पैटर्न्स फ्रॉम द इमेजेस। और जैसे ही मेरा मॉडल ट्रेन हो गया है, मैंने अपने मॉडल को सेव किया था मॉडल नाम से, तो ऐसे ही वही नाम लिखूंगा यहाँ पे मॉडल डॉट इवैल्यूएट। किसके अंदर इवैल्यूएट करना है, जो भी मेरा ऑनसीन सैंपल था टेस्ट जनरेटर, उसके ऊपर क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो जब मैंने इसको इवैल्यूएट किया, आई रिसीव्ड द एक्यूरेसी ऑफ 95%। इट मीन्स माई मॉडल इज गुड इन डिस्क्रिमिनेटिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ब्रेन ट्यूमर डिजीज। Next, this line of the code is simply used to plot the classification report, यानी कि मेरे प्रिसीशन वैल्यू, कॉल वैल्यू कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लॉट करने के लिए मैंने वाले कोड लिखे हैं। ठीक है, तो इससे दिखाई दे रहा है कि ग्लायोमा के केस में 98% एक्यूरेसी तक आ रही है, रिकॉर्ड की वैल्यू 96% की एक्यूरेसी आ रही है। तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट माई मॉडल हैज़ अ गुड जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी डिस्क्रिमिनेटिंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ब्रेन ट्यूमर डिजीज। ठीक है, और ये वाला कोड अच्छा मॉडल फिर से लिख दिया, मैंने लगा है कुछ डबल लिख दिया मैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, तो ये वाले कोड से फिर से अभी टेस्ट कर रहा है ये। और ये वाले मैंने कोड लिखे हैं फॉर द विजुलाइजेशन ऑफ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टू स्टडी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर CNN बेस्ड मॉडल। तो इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ये देखो, आप लोग यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ग्लायोमा के केस में इसने 289 वैल्यू यहाँ पे मिला। इट मीन्स ग्लायोमा को ही प्रिडिक्ट किया है 289 इमेज एक्यूरेटली। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू है। और पर आई थिंक मेरा मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। उसको इमेज 11 इमेज थी ग्लायोमा के, और इसने प्रिडिक्ट किया इसको मैनिग्मा के सोच के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन हो गया है। और ग्लायोमा के नो ट्यूमर के साथ, पिट्यूटरी के साथ कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगेन मैनिग्मा वाले जो इमेज थे उसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए हैं 258 इमेज को। 258 इमेज को एक्चुअली प्रिडिक्ट किया है मैनिग्मा के रूप में।
पर 35 इमेजेस को उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिया एज अ नो ट्यूमर। उसको लगा, मेरे मॉडल को लगा कि शायद नो ट्यूमर वाली इमेज है, तो उसने प्रिडिक्ट कर दिया नो ट्यूमर, पर ये 35 इमेज थे मेरे मेनिंगियोमा के। ठीक है, तो सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन होगा। नो इमेज हैज़ बीन कंफ्यूज विद द पिट्यूटरी पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे नो ट्यूमर वाले 398 इमेजेस हाई प्रिडिक्ट हुए सबसे ज़्यादा। तो दिस इज़ द वेरी गुड एक्यूरेसी। बट इन केस ऑफ द पिट्यूटरी बहुत ही कम कंफ्यूजन हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ वेरी रोबस्ट मॉडल इन डिटेक्टिंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द ट्यूमर डिजीज। ठीक है, अब ये वाली जो कोड है मैंने यूज़ किया है विजुलाइजेशन पर्पज के लिए, कि मेरा मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है वो इमेज मतलब कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया, उस इमेज के फॉर्म में डिपिक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को मैंने कोड लिखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाले मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे आउटपुट में, तो एक्चुअल में ये वाला जो इमेज था ये ग्लायोमा का इमेज था, तो इसको मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है ग्लायोमा के ही रूप में। ठीक है, इट मीन दिस इज अ करेक्ट प्रिडिक्शन। Similarly, this image was glioma and prediction was glioma. This is again the accurate prediction. And you can see here in this is the meningioma image, and my model has predicted is meningioma. This is again a correct prediction. But I think yeah, in this case, my model has been failed to predict it. Actually, this image was no tumor image, but my model has predicted it as meningioma. So ये वाला थोड़ा सा मिस क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसी वजह से, इसी मिस क्लासिफिकेशन की वजह से ऐसे बहुत और भी इमेजेस है जो मिस क्लासिफिकेशन हुए होंगे, इसके चलते मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी आई है 95%। ठीक है, तो अगर आप डेटा कमेंटेशन वगैरह इंक्रीज करोगे, मॉडल को और डीप बनाओगे, और ज़्यादा कंप्यूटेशन न्यूरल नेटवर्क रखोगे, इपुक्स को इंक्रीज करोगे, लर्निंग रेट को थोड़ा सा रिड्यूस करोगे, तो आप लोग की एक्यूरेसी हो सकती है 95 के बदले में 97 आए, 98 आए, 99 आए। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजी टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल्स। यू कैन इन्हांस द परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग सैंपल। ठीक है, डेटा आर्गुमेंटेशन करके, या फिर मोर विजिबल पिक्चर एक्सट्रैक्ट करो बाय यूजिंग द convolution layers, by adding more convolution layer, make your neural network deep in size. ठीक है, by reducing the learning rate, by reducing the batch size, you can enhance the performance of your student based models. ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। See you guys in the next session. Till then, bye.